Bye. Yeah, but he's living out the way. He ain't living in the middle of Stockport where it's council, is he? There. He lives it in there. He has a orange with black. I've just seen it pull up. Yeah. I've just seen it pull up So there. they will not give a shit about my car, like it's a Mercedes or what. They will not. It doesn't mean, like, I think these people, they have more expensive cars than we have, me and you, because they will do other jobs for sure, so they will not care too much about our car, Elliot, to be honest. You buy whatever car you want to And buy. just leave it in there. Yeah. Just buy a used car. That would be good. Let's put it this way, I was going to upgrade my car to a new car, and then when I moved here, not a chance. Because I know the area, I know the people who live here, I know the young kids and what they like, so I ain't buying a new car for nobody because that will become a target as far as I'm concerned. Yes. So I'm going to stick with that old car that isn't giving loads of attention. Yeah. I know this area, I've known it all my life, I know what it's like. Yeah, just buy a used car. I think that would be great. It's not, you don't need to buy a new car. Now, if I lived out in the Cheshire Plain, out the way, or in Worsley somewhere, where I would be buying a supercar or a big fancy car. Round here, I ain't buying one because you will stand out like a Belisha beacon. But your way of thinking is different to mine. I go for the safe option. You go for, oh, I'm not bothered with the insurance. But it's the mess it causes when someone messes with your car or tries to pinch it. The damage is unbelievable. If they break your door getting in, they pull your electrics out. You're not talking 200 quid. Mercedes will send out a top of the range electrician, and that will cost you thousands. But and they haven't even pinched it. They've only wet the wiring So underneath why to do try I and pay make the it. insurance? Because there's loads of loopholes in insurance. It's like you said, my car's insured. तो सुबह से कॉल्स थे और एक इशू आया हुआ था, मतलब जो आईटी फील्ड से होंगे उनको पता चलेगा कि मतलब जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे एपीआईज डिप्लॉय होते हैं डेटा सेंटर्स में, मतलब एक जगह पे मतलब लोड बैलेंसिंग का जो काम होता है, एक जगह पे वही इंस्टेंस चल रहा है, दूसरी जगह पे वही इंस्टेंस चल रहा है, तो लोड बैलेंसिंग के थ्रू जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है वो किस तरफ जाएगी, किस इंस्टेंस पे जाएगी, उसी का एक इशू था। मतलब कि कुछ डिप्लॉयमेंट का ही वही कुछ प्रॉब्लम हुआ था। वो एक इंस्टेंस तो जो था, मतलब जो एनवायरनमेंट हम यहाँ टेस्टिंग वाला इस्तेमाल करते हैं उसको ये है कि एक ही इंस्टेंस होना चाहिए था। तो एक पुराना इंस्टेंस था जो कि बकवास था। उस इंस्टेंस में अपना जो बिल्ड जार जो था, वो वर्जन जो था वो काम का नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में मेरे काम का था। जो लेटेस्ट जो जार मैंने बिल्ड किया था वो उस पर डिप्लॉयड था, लेकिन हमेशा ट्रैफिक वो पुराने वाले में ही जा रहा था। तो जो डेवऑप्स के लोग होते हैं जो ये सब देखते हैं, राउटिंग वाउटिंग डिप्लॉयमेंट ये सब जो देखते हैं, मैंने उनको संपर्क किया तो पूछा कि भाई हो क्या रहा है बताओ। तो फिर उन्होंने कुछ अभी फिक्स किया है। अब उसमें और एक समस्या आ गई कि उन्होंने कहा कि जो एपीआई की रजिस्ट्री होती है, आप अगर जो स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं को पता होगा कि यूरेका सर्वर में एपीआई की रजिस्ट्री होती है। तब यूरेका सर्वर से ही वो जो गेटवे होता है देखता है कि उसका फुल यूआरएल मिलता है ना एपीआई का, तो वो किधर राउट करना है उसको वहाँ से पता चलता है। वो इंस्टेंसेस मिलते हैं वहाँ पे। तो यूरेका सर्वर में अपनी एपीआई की रजिस्ट्री ही नहीं हुई है। तो वो डेवऑप्स वाली बंदी बोली कि भाई 6 बजे यूके टाइम में वो सारा सर्वर रिफ्रेश होगा, वहाँ पे अपडेट होगा, तो आप तब तक इंतज़ार करो। मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, वही देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही आईटी फील्ड में ऐसे कुछ आते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोड कर लो, बिल्ड कर दो, डिप्लॉय कर दो तो आपका चली जाएगा, कि 1000 लफड़े भी होते रहते हैं। कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये तो एक पार्ट था। एक दूसरा था कि टेस्टिंग उस एनवायरनमेंट में ख़त्म हो चुकी थी, अगले मतलब ऊपर वाले एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय करना था। तो उसके लिए भी बहुत मशक्क़त हुई, मतलब बहुत
क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। और जो प्रोजेक्ट मुझे बोल रहा था कि आज डिप्लॉय करना ही है, आज मतलब और कोई चारा नहीं है, मेरे को डिप्लॉय करना ही है। तो मैंने जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज चाहिए थी, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज चाहिए थी, वो मुझे तैयार नहीं करनी थी। ऊपर वाले एनवायरनमेंट को डेवॉप्स वाले बंदे करते हैं हमारे, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है। लेकिन शायद डेवॉप्स वाली जो बंदी है, वो लड़की है, वो थोड़ी नई है, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैंने कोई सारा प्रॉपर्टीज तैयार करके उसको देना पड़ा। और जब प्रॉपर्टीज तैयार करके मैंने 1 घंटे बाद पूछा कि डिप्लॉयमेंट चल रहा है क्या, तो बोलती है कि नहीं, मैं कुछ और दूसरे काम पे बिजी हो गई हूँ, प्रायोरिटी का वाला काम ज़रूरी है, तो मैंने प्रोजेक्ट को बता दिया है। तो आज भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। तो भाई मतलब क्या चल रहा है फिर, इतना खस्ताने का क्या था कि आज ही करना है डिप्लॉयमेंट। एनीवे, ये आईटी फील्ड की ये सारी बातें होती तो ऐसा होता ही रहता है। एनीवे, तो अभी बज गए हैं 2:45। मैं जाता हूँ कुछ खाना बनाने, क्योंकि सुबह में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाया हूँ, आज अंडा भी नहीं खाया ब्रेकफास्ट में। तो शायद नहीं, भूख तो लगी रही है। तो जाता हूँ, देखता हूँ क्या बना सकता हूँ मैं अपने लिए, फिर देखता हूँ। सी यू। अभी मैं किचन रूम में गया था, तो वहाँ डिस्कशन हो रहा था कि डिस्कशन ये था कि एक जो मेरा मैं तो शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता हूँ। अपार्टमेंट मतलब एक घर ही है, उसमें 8 रूम्स हैं, एक कॉमन किचन है। किचन जो रसोई है, रसोई घर सब कोई उसको इस्तेमाल करते हैं। और एक बैकयार्ड है, कॉमन बैकयार्ड, मतलब वहाँ पे भी आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे ही सुबह में मैं नाश्ते के लिए गया था, तो और 2 लोग थे वहाँ पे, तो डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन ये था कि एक लड़के का ये बीते शुक्रवार को जन्मदिन था, बर्थडे था। तो उसने, और वो ग्रीस से है, तो अपने कुछ साथियों को बुलाया था जो ग्रीस से थे, और उसमें से एक अंग्रेज़ भी था। तो अपने जन्मदिन के कुछ दिन पहले उसने बताया था कि ग्रुप है हमारा, एक घर का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसने बताया कि भाई मेरा शुक्रवार को जन्मदिन है, तो मेरे कुछ दोस्त आएंगे रात को, तो आर यू ऑल फाइन विथ इट। पूछा था हमसे, तो हमने कहा सब ठीक है भाई, बर्थडे मनाओगे, हमें क्या लेना देना, मतलब हमें क्या दिक्कत उससे। अब शुक्रवार हुआ, वीकेंड था, मैं काम धाम ख़त्म करके मैं कुछ कोका कोला की कैंस ले आया। फिर यहाँ एक लोकल ड्रिंक होती है, अल्कोहल नहीं, मतलब कि एक कुछ लोकल ड्रिंक कोका कोला टाइप की ही मिलती है, जैसे ग्लूकोज वाला होता है ना, जैसे ग्लूकोजेड मिलता है, वैसे ग्लूकोज का टाइप का एक था, और एक ड्रिंक कोका कोला, और एक कोका कोला की कैन और वो एक लोकल ड्रिंक जो थी, वो लेके के मैं आया। सोचता मैं भी बाहर बैठ के थोड़ा पीऊँ और कुछ एक मूवी देखूँ। तो एक तेलुगु मूवी जो डीजे थी, मैंने उस दिन देखा। तो उसके दोस्त आए, वहाँ पे पार्टी चल रही थी, बियर, अल्कोहल, विस्की, स्कॉच, वोडका सब चल रहा था। मैं अंदर बाहर बैठ के अपना वो कोका कोला पी रहा था, कोका कोला पिया, फिर वो लोकल ड्रिंक जो लाया था वो पिया, और मैं मूवी देखने लगा। तो ऐसा करके समय बीता, फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं सो गया। पार्टी 1-2 घंटे में ख़त्म हो गई। उसके बाद लोग चले गए। तो आज सुबह में क्या हुआ कि वो पूछ रहे थे कि भाई मतलब उस दिन तो पार्टी थी, तो तुम अंदर क्यों नहीं आए, तुम तो बाहर ही बैकयार्ड में बैठे हुए थे। भाई मैंने कहा कि नहीं आया उस दिन, मुझे बस अकेला रहने का मन कर रहा था, अकेला कुछ समय बिताने का मन कर रहा था। मैं मन ही मन सोचा, भाई उसने कौन सा हमें न्योता दिया था, कौन सा हमें आमंत्रण दिया था, हमें तो नहीं बुलाया था ना, बाकी लोग तो घर के नहीं आए। और उसने उसमें साफ साफ व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि भाई मेरा शुक्रवार को जन्मदिन है, और मेरे कुछ ग्रीक दोस्त मतलब ग्रीस से दोस्त, मतलब ग्रीक दोस्त आने वाले हैं पार्टी के लिए। मुझे तो नहीं लगा, उस वाक्य से मुझे नहीं लगा कि भाई तुम हमें भी आमंत्रण दे रहे हो, हमें भी इनविटेशन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं था। तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उस पार्टी में शरीक होने जाऊँ उससे।
हालांकि जब मैं अंदर बाहर हो रहा थोड़ा गर्म पानी भी पी रहा था, मैं कभी कभी मैं बाहर बैठा था, थोड़ी ठंड थी तो मैं गर्म पानी लेने जा रहा था, तो एक दो बार गया तो वो उसने बताया कि ये चीज़ पिज्ज़ा है ले लो, तो मैं थोड़ा सा एक स्लाइस लिया था और हैप्पी बर्थडे भी उसको विश किया। लेकिन भाई पार्टी में शरीक होने के लिए तो नहीं बोला था, तो मैं कैसे पार्टी में शरीक हो जाऊँ। ये थोड़ा आज का एक वियर्ड इंसिडेंट था, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करूँ। और फिलहाल तो बज गए रात के 8:30, मैं जाता हूँ थोड़ी पढ़ाई करने एंड देन कल सुबह में फिर से काम है। सो सी यू टुमारो और तब तक के लिए बाय। सी यू।